Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are completing our chapter number 4 and we are going to study a lecture number 12. In this lecture we will complete all of our accounting process, a complete accounting cycle that we started from the transaction till the completion of our financial statements to the closing entries and after closing trial balance. So let's start from the brief overview of our previous lecture. In our previous lecture, we talked about the structure of worksheet, how the worksheet is prepared. We personally developed our worksheet from different accounts, different columns, and in each column we made debit and credit. So we had first serial number, then details of our accounts, then unadjusted trial balance, we made adjustments, then adjusted trial balance, and finally we reach up to the financial statements. So all the accounts in the financial statements came from the adjusted trial balance. So that is a brief overview and sample accounts that we had prepared. First, I have taken a cash. We have taken a cash just because to show that if there is no transaction involved in our adjustments, we have to put all the data without any modification in the financial statements relevant to it. Now we have, for example, cash. So cash was in the debit account. There was no adjustment in worksheet, whereas then no adjustment was made, so that is why all the amount was transferred in the adjusted trial balance. And then we reach up to the financial statements because this account is involved with the balance sheet, so we have to skip this income statement column, and then finally we have to come up on our balance sheet and side of debit. So we concluded up to those accounts which do not need any adjustments, we have to brought adjusted trial balance directly to the financial statements. No adjustments were required, no adjusted trial balance was used, just we skipped over to the financial statements, and that is specific to it. Now look at the structure, complete structure of our worksheet. We used a title of accounts, या accounts title जिनको आप बोलते हैं. Then we made unadjusted trial balance. This is a basis for our worksheet. उसके बाद आपने adjustments की, फिर finally आपने adjusted trial balance बनाया. आपके पास अब यहाँ पर 3 कॉलम्स नॉर्मली चलते रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक स्पेस नहीं थी. उस स्पेस ना होने की वजह से हम दरमियान में से फिर कॉलम्स क्विट करते गए हैं, दरमियान में से कॉलम्स रिसाइकिल किए हैं, या हमने उनको पीछे छोड़ दिया, जो हमें ज़रूरत थी उनको हम आगे लेके चलते रहे. फिर फाइनली हमने इतने हिस्से को यूज़ किया था. एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट. पिछले लेक्चर में हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाई थी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के थ्रू. अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वर्कशीट में कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं कि जिनकी एडजस्टमेंट नहीं की जाती, उनको एज इट इज़ आप उठाकर फाइनल उसकी रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल देते हैं.
अब इसकी एग्जांपल हमने ली थी कैश की, कि कैश की कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं थी, सो दैट इज व्हाई वी डायरेक्टली पुट इट दैट इनटू द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एंड फ्रॉम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस टू डायरेक्टली रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपको पता है कि कैश इज अ करंट एसेट एंड दैट करंट एसेट इज रेलेवेंट टू द बैलेंस शीट, आपने उसको बैलेंस शीट में लिख दिया। अब कहीं पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, जहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी उसको आपने वहां से हटा दिया। देन आई एम यूजिंग अनदर अकाउंट दैट इज अकाउंट रिसीवेबल, दिस इज आल्सो अ सैंपल। आई एम यूजिंग द सेम अमाउंट्स, same treatment, but using few accounts just to show a complete picture of our worksheet, that how the worksheet works when we are using a complete accounts, complete columns. आपके पास यहाँ पर account receivable that was unadjusted 2220, but if you could remember we had also another transaction in which we did not build, उसका बिल हमने नहीं बनाया था। आपने सर्विसेज परफॉर्म की, आपका रेवेन्यू बन गया था और आपने उसकी जो जनरल एंट्री की थी वो आपकी अकाउंट्स रिसीवेबल टू फीस अर्नड। आपके पास 500 और 500 की ये आपने जनरल एंट्री की थी। अब ऑलरेडी आपके पास 500 आपने अर्न कर लिया, अकाउंट्स में 2220 मौजूद थे, तो आपने ये 500 यहाँ पर इसकी डेबिट साइड पे लिखा। फिर उसको आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लिखा, यानी अनएडजस्टेड डेबिट प्लस एडजस्टमेंट डेबिट, सो बोथ आर एडेड विद ईच अदर, द अमाउंट इज नाउ 2720। अब ये भी आपके करंट एसेट का पार्ट है और करंट एसेट इज अ पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट, तो आपने उसको एज इट इज डायरेक्ट इसमें लिख दिया। सो व्हाई वी आर यूजिंग, कि आपने स्टार्ट किया कैसे, फिर आप एडजस्टमेंट पे आए, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया और फाइनली आप बैलेंस शीट पर पहुंच गए। देन फिर हम यूज कर रहे हैं, अब ये जो दो आइटम्स थे ये आपके बैलेंस शीट से रेलेवेंट थे, आपने इसको बैलेंस शीट में लिख दिए। अब इसमें हमने दो एंट्रीज ऐसी ली कि एक का इफेक्ट एडजस्टमेंट में था, दूसरे का नहीं था, तो उन दोनों की हमने ट्रीटमेंट भी देख ली कि अगर आपके पास एडजस्टमेंट में उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो वी आर जस्ट पुटिंग इट इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जिसकी ट्रीटमेंट है तो उसको फिर आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लेके गए और फाइनली वहां से आपने उसको ट्रांसफर कर दिया अपनी बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद फीस अर्न्ड इज अ पार्ट ऑफ योर इनकम स्टेटमेंट। अब इस हम अकाउंट को ले रहे हैं, आपके पास 16,340 की ऑलरेडी आपके पास एक अमाउंट मौजूद थी फीस अर्न्ड की, फिर आपने एडजस्टमेंट की है 500 की, यही आपके पास ये जर्नल एंट्री मौजूद है। इसको मैंने एज ए सैंपल लिया क्योंकि आपके पास ये दोनों का इफेक्ट शो हो रहा है। तो ये आपका पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट है, इनकम है, तो आपने इसकी एडजस्टिंग एंट्री की, 500 आपने क्रेडिट साइड पे इसके एडजस्टमेंट में लिखा, एंड फाइनली वी रीच अप टू द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, वी एडेड बोथ क्रेडिट साइड्स 16,340 प्लस 500, नाउ वी रीच अप टू 16,840। आप यहां पर पहुंच गए 16,840। अब आपको पता है कि ये आपकी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, तो आपने उसको इनकम स्टेटमेंट में लिख दिया। अब आपकी इनकम स्टेटमेंट में आता है तो आपने इसको इनकम स्टेटमेंट में लिख दिया। बैलेंस शीट का आइटम नहीं है तो आप इसको बैलेंस शीट में लिख ही नहीं रहे। अब आप खुद देखें कि वी स्टार्टेड फ्रॉम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, मेड एडजस्टमेंट्स, देन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एंड फाइनली वी हैड टू मोर कॉलम्स, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। आप उसी तरह पूरे सीक्वेंस में हॉरिजॉन्टली चलते आ रहे हैं। देन एक और हमने अकाउंट लिया था वेजेस पेएबल का, आप इसको वेजेस पेएबल भी लिख लें या आप इसको एब्रीविएशन लिखना चाहें तो W/P लिखते हैं, लेकिन जब आप अपने एग्जाम्स में जाएंगे तो आपने इसकी पूरी प्रैक्टिस के साथ जाना है। वी नीड टू राइट अप विद द वेजेस पेएबल रादर देन W/P। तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि ये W/P क्या बनता है। अब आपके पास वेजेस पेएबल आपके पास एक अकाउंट था और ये इसकी आपने एडजस्टिंग एंट्री की थी। व्हाट वी डिड, फर्स्ट वी हैड आल्सो वेजेस एक्सपेंस, तो वो ऑलरेडी आपका एक्सपेंस था। इन एक्सपेंस एज वी नो दैट इट इज अ पार्ट ऑफ आवर
इनकम स्टेटमेंट उसमें ले गए। अब यहाँ पे सिंपल एक मैंने एडजस्टिंग एंट्री पेबल्स की ली है। पेबल्स इज अ पार्ट ऑफ yes liabilities and liability is a component of our balance sheet, the other side of balance sheet. So आपके पास अब यहाँ पर मैंने इसलिए इसको लिखा है कि आपके पास वेजेस का अकाउंट ऑलरेडी अवेलेबल नहीं था, तो इसकी क्या फिर ट्रीटमेंट होगी। आपके पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में पहले वेजेस पेबल था ही नहीं, आपने उसकी एडजस्टिंग एंट्री की, आपने पेबल इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, क्रेडिट है, इंक्रीज इन क्रेडिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट, आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब क्योंकि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आपके पास ये अमाउंट ही नहीं थी, तो फिर आपने एज इट इज इसको ट्रांसफर कर दिया इसी अमाउंट के साथ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में विद अमाउंट ऑफ 250। आपके पास अब 250 की अमाउंट आ चुकी है। दिस 250 वेजेस पेबल इज अ पार्ट ऑफ अवर बैलेंस शीट। तो इनकम स्टेटमेंट के कॉलम को आपने स्किप किया और फाइनली आप पहुंच गए बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड पे। अब इसमें मैंने जो 4 अकाउंट्स यूज किए हैं उसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आपके सामने आई हैं। पहली ट्रीटमेंट आपके पास ये थी कि आपकी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कैश मौजूद था, उसकी कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं थी, तो जाहिर हमने एज इट इज उसको ट्रांसफर किया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हम उसको ले गए बैलेंस शीट में, आपने एक काम कंप्लीट कर दिया। दूसरी क्लासिफिकेशन हमने की थी कि आपके पास एक और एसेट है जिसकी एडजस्टमेंट भी है, आपने उसकी एडजस्टमेंट की, दोनों को ऐड किया और फाइनली उसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ले गए। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से आप उसको फिर उसका जो रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट थी उसमें आपने लिख दिया। ये 2 क्लासिफिकेशंस आपने पूरी कर दी। तीसरी क्लासिफिकेशन आपकी फीस अर्न, आपकी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। पहले से आपकी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में फीस अर्न अवेलेबल थी, ये अकाउंट्स एग्जिस्ट करता था आपका। उसके बाद आपने एडजस्टमेंट की, एक एडजस्टमेंट की अमाउंट ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल थी, आपने दोनों क्रेडिट्स को ऐड किया और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ले गए। फिर क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है तो आपने उसको इनकम स्टेटमेंट में लिख दिया। ये काम भी हमने कंप्लीट कर दिया। फिर तीसरे नंबर पे वेजेस पेएबल। अब चौथी क्लासिफिकेशन इसकी ये है कि आपकी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ये अकाउंट अवेलेबल ही नहीं था। तो सिंपल, आप जब अकाउंट्स अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको एडजस्टमेंट में ले जाएं। अब क्योंकि पहले आपके पास अकाउंट अवेलेबल ही नहीं है तो आपको यहां पर इसकी प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, तो सिंपल आप उसको एडजस्टमेंट में लिखने के बाद डायरेक्ट ही ट्रांसफर करें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। तो ये चौथी क्लासिफिकेशन हमने इसलिए ली थी कि इन केस अगर कोई आपका अकाउंट अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर आपने डायरेक्ट एडजस्टमेंट में लिखा, उसको ट्रांसफर किया अपनी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। देन फाइनली दिस इज एन अकाउंट ऑफ योर बैलेंस शीट, वी स्किप्ड इनकम स्टेटमेंट एंड डायरेक्टली वेंट टू द बैलेंस शीट आइटम्स फ्रॉम द अदर साइड ऑफ बैलेंस शीट, दैट इज योर लाइबिलिटी साइड। आपने उसको कंप्लीट कर दिया। अब ये 4 अकाउंट्स हमने यूज किए थे, इसके ऊपर हमने काम किया था ताकि हमें ये पता चल सके कि इन केस आपकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं एडजस्टमेंट की तो हमने उसको कैसे ट्रीट करना है फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक। उसके बाद आपने वो अकाउंट यूज किया जिसकी एडजस्टमेंट भी थी, उसको ऐड किया। फिर हम इनकम स्टेटमेंट के आइटम पे आए, उसकी एडजस्टमेंट देखी। और तीसरा, आपके पास इन केस अगर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ही आपके पास कोई अकाउंट अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने उसकी कैसे ट्रीटमेंट करनी है। सो आई होप दैट नाउ दिस इज easy and comfortable for you. Now, adjusting and closing entries. We had already done our adjusting entries. How do we have to pass our adjusting entries? And we have seen that there could be accruals or there could be deferrals. आपके पास ये 2 क्लासिफिकेशंस हमने पढ़ी हैं। अब deferrals में भी आपके पास कुछ चीज़ें हो सकती हैं, accruals में भी हो सकती हैं। 2 क्लासिफिकेशन का मतलब नहीं है कि सिर्फ आपके पास 2 ही जर्नल एंट्रीज होंगी। यू कुड हैव इवन मोर जर्नल एंट्रीज, मोर एडजस्टिंग एंट्रीज इन वन डेफरल, और यू कुड हैव मोर जर्नल एंट्रीज इन योर अक्रूवल्स।
कहीं पे भी ज्यादा हो सकती हैं वो आपने की हैं, एंड आपने इनकी जर्नल एंट्रीज पास करनी होती हैं। वर्कशीट आपको एक थोड़ा सा समराइज वर्क देता है, लेकिन आप जब कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल कर रहे होते हैं तो आपने उन जर्नल एंट्रीज को पास करना होता है। पास करने के बाद आपने उनको अपनी लेजर्स में लेके जाना होता है। इफ यू विल नॉट ब्रिंग ऑल दीज एडजस्टिंग एंट्रीज इनटू द लेजर अकाउंट्स, you would transfer wrong amounts of your balances into the trial balance. So it is necessary that you have to pass journal entries of adjusting entries so that we could reach up to a correct amount, a correct value. Now if a worksheet has been prepared, the data for these entries are in the adjustment columns. As we know that if we are passing any एडजस्टिंग एंट्रीज वी हैव टू पुट इट ऑन द एडजस्टमेंट कॉलम्स। आपने वहां पर लिखना है उसको। अब जब आप वर्कशीट बना रहे हैं तो मैं बता दूंगा आपको जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं, बिकॉज वी आर फेमिलियर। हमें पता है कि हमने काम कैसे करना है, हमें पता है कि हमने कैसे डेबिट किया, कैसे क्रेडिट किया, बिकॉज वी ऑलरेडी नो अबाउट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जब आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पता है तो फिर मेरे ख्याल में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके लिए। जब आपको पता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं, आपके पास बैलेंस शीट के आइटम्स को कैसे ट्रीट किया जाएगा और इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स को कैसे ट्रीट किया जाएगा, तो मेरे ख्याल में हमारे लिए काम करना आसान हो सकता है। अगर यहां पर मैं आपको एक डिफ्रेंसिएशन दूं कि आपके पास फॉर एग्जांपल एसेट्स और एक्सपेंसेस, इनकी ट्रीटमेंट सेम होगी। उसके बाद लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी प्लस इनकम, ये आपके पास 3 कंपोनेंट हैं, इनकी ट्रीटमेंट सेम होगी। अब आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आपका एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट, तो सेम आपका एक्सपेंस इंक्रीज करता है तो डेबिट। हमने क्लासिफिकेशन यहां पे कंप्लीट कर दी है इन दोनों आपके जो अकाउंट्स हैं। सेम इनका बिल्कुल अपोजिट आपकी लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी प्लस इनकम, ये 3 कंपोनेंट ऐसे हैं कि जिनकी जो डेबिट और क्रेडिट का रूल है वो टोटली एसेट्स और एक्सपेंसेस के उलट चलता है। अब आप इसकी नेचर देखें और उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दें। क्या आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है, एसेट्स बढ़ रहे हैं तो डेबिट हो रहा है, एसेट्स कम हो रहे हैं क्रेडिट हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहे हैं तो क्रेडिट हो रहा है। अब इसको मैं दोबारा से रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमने नेक्स्ट में क्लोजिंग एंट्रीज करनी है। जब आपकी क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं तो फिर ये अकाउंट्स आपके ट्रांसफर होते हैं किसी और स्पेसिफिक अकाउंट में, तो वो अकाउंट खत्म होता जाता है। जब वो अकाउंट खत्म हो रहा है तो इसका मतलब आपका वो आइटम कम होता जा रहा है। वो कौन से आइटम है, आपके पास एक्सपेंस और आपके पास इनकम। एंड वी हैव टॉक्ड मेनी टाइम्स दैट दीज अकाउंट्स आर टेम्परेरी अकाउंट्स। टेम्परेरी अकाउंट्स वो होते हैं कि जो आपके ऑपरेशंस का रिजल्ट होता है और उस रिजल्ट के नतीजे में उस आप लोग या तो रेवेन्यू जनरेट करते हैं या आपको लॉस बेयर करना पड़ता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो इनकम स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स हैं, दीज आर ऑल योर टेम्परेरी अकाउंट्स। इन्होंने क्लोज होना होता है। इन्होंने क्लोज होके कहां जाना है, आपका एक इनकम समरी अकाउंट बनता है, उसमें इन्होंने क्लोज होना होता है। उसकी डिटेल हम फर्दर देखते हैं। बिकॉज दीज अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू द कैपिटल अकाउंट। आपके पास इनकम माइनस एक्सपेंस, अब आपके पास यहां पर नेट प्रॉफिट आपने जनरेट किया। इस नेट प्रॉफिट ने आपके जाना होता है कैपिटल अकाउंट में। अब आपके पास यहां पर ये अकाउंट बच गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेट इनकम दैट इज योर टेम्परेरी अकाउंट, योर एक्सपेंसेस
योर टेम्परेरी अकाउंट्स, योर इनकम, योर टेम्परेरी अकाउंट। तो आपने इन सब की क्लोजिंग एंट्रीज करनी होती हैं, क्योंकि क्लोजिंग एंट्रीज इनको क्लोज कर रही होती हैं, क्योंकि आपने इस नेट इनकम को आगे नए साल से स्टार्ट नहीं करना। वी हैव टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रैच। आपने कहा कि इस साल, फॉर एग्जाम्पल वी आर ऑल द टाइम टॉकिंग अबाउट 31 December 2010, सो अप टिल नाउ वी हैव अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 7,205। ये हम बार बार इसी की बात कर रहे हैं ना, कि हमने जितनी भी जनरल एंट्रीज की हैं, ये आपका नेट प्रॉफिट था। अब इसको आप नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे 1 जनवरी 2011 को। ये आपका ट्रांसफर हो गया आपके कैपिटल अकाउंट में। नाउ योर 1 जनवरी 2011 वुड बी अ जीरो इन नेट इनकम। आपकी ये जीरो होगी, वहां से आपने अब शुरू करना है। जब आप पहुंचेंगे 31 December 2011, तो वहां पर आपने फिर नए सिरे से बताना है कि इस साल फ्रॉम 1 जनवरी 2011 टू 31 December 2011 हमने इस टाइम पीरियड के अंदर इतना प्रॉफिट अब अर्न किया है। पिछले साल हमारा ये था, विच इज नॉट लिंक्ड विद द 2011। वो उस साल के ऑपरेशंस के रिजल्ट्स थे, ये इस साल के बिजनेस के ऑपरेशंस के रिजल्ट्स हैं। आप उनको सेपरेटली ले रहे हैं। एनालिसिस आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आपके टेम्परेरी अकाउंट्स का बैलेंस नेक्स्ट में शिफ्ट नहीं होता, हमेशा वो वहां पर क्लोज हो जाता है। अब आपको मैंने एक सिंपल बताया कि इनकम स्टेटमेंट्स के अकाउंट्स आपके सारे के सारे टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं। उन्होंने नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं होना, उन्होंने क्लोज हो जाना है 2010 में, 31 December 2011 में क्लोज हो गए। फिर आप 1 जनवरी 2011 से स्टार्ट करते हैं, और वो जीरो से स्टार्ट होता है आपका। जीरो से एक्सपेंस, जीरो से रेवेन्यू, और फाइनली आप पहुंच जाते हैं 31 December 2011 तक। तो आई होप नाउ यू कैन डिफरेंशिएट टेम्परेरी अकाउंट्स एंड परमानेंट अकाउंट्स। परमानेंट अकाउंट्स balances are always transferred into the next time period, whereas temporary accounts balances are not transferred, they are just closed into that specific period। वो specific period आपका कोई भी हो सकता है, उसमें आप हो सकता है 30 जून को करते हो क्लोज, या हो सकता है आप उसको 31 दिसंबर को करते हैं। अब आपका जो फिजिकल ईयर है वो हर कंट्री का डिफरेंट हो सकता है। हमने क्योंकि इस चैप्टर के स्टार्ट में कहा था कि फिजिकल ईयर और आपका अकाउंटिंग ईयर आपका 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर तक जाता है। फिजिकल ईयर आपका, आप पाकिस्तान के फिजिकल ईयर की बात करें तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जुलाई अप टू नेक्स्ट ईयर 30 जून, आपके जिसमें बजट भी दिया जाता है कि आपका 30 जून को वो क्लोज हो गया, 1 जनवरी से 1 जुलाई से नया बजट स्टार्ट होगा। तो दैट इज योर फिजिकल ईयर। आपके सारे के सारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे होते हैं, आपके नए सिरे से काम स्टार्ट हो रहा होता है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग ईयर एंड फिजिकल ईयर। अकाउंटिंग ईयर्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी टिल 31 दिसंबर, और आपका जो फिजिकल ईयर है दैट स्टार्ट्स may be different in it is different from country to country, but here in Pakistan it starts from 1st July to 30th June next year। अब इसको यहाँ पर 6 माह का उन्होंने फर्क डाला हुआ है। Now as I told you that your temporary accounts are always closed in your income summary accounts। अब हर एक अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट के इनकम समरी अकाउंट बनता है, और वो इनकम समरी अकाउंट में ट्रांसफर होता है। आपके पास सेम उसी तरह ये टी अकाउंट यूज होगा जिस तरह आप लोग करते थे। आपके पास यहां पर इनकम, आपके पास इनकम समरी अकाउंट यूज होता है ये वाला, और सेम उसी तरह टी अकाउंट होता है, या इसको आप लेजर बोल सकते हैं, आपका ये लेजर होता है। और जितने भी आपके टेम्परेरी अकाउंट्स हैं वो यहाँ पर क्लोज होते हैं। अब आपके पास वो इनकम समरी अकाउंट जनरेट होगा जो आपके टेम्परेरी अकाउंट्स हैं उनको क्लोज कर देता है। अब इसकी एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं अपनी इनकम से। आपने नेट इनकम
नेट इनकम आपने 7,205 ये अर्न की, ये आपकी ट्रांसफर हो रही है कहां पे, आपके कैपिटल अकाउंट में। आपने जो टोटल रेवेन्यू था दैट वाज जनरेटेड 16,840। अब ये आपका रेवेन्यू है, इसने क्लोज होना है इनकम समरी अकाउंट में। अब हम कहते थे कि इंक्रीज इन रेवेन्यू इज ऑलवेज क्रेडिट, तो जब आप इसको क्लोज कर रहे हैं तो इसका बिल्कुल आप उलट अकाउंट बनाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड, यू हैव टू मेक इट डेबिट। आप फिर क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं आप इनकम समरी अकाउंट में, आपके पास ये इनकम समरी अकाउंट बन रहा है। तो फिर आपके पास इसकी जनरल एंट्री पास होगी, इसको आप रेवेन्यू कहें या आप इसको फीस अर्न, जो भी आपकी रेलेवेंट अकाउंट था उसको आप डेबिट करें, और क्रेडिट में आप इनकम समरी लेके आ रहे हैं। अब आपने इस इनकम को रिप्लेस किया है किसके साथ, इनकम समरी के साथ। अब नाउ यू आर यूजिंग फ्रॉम फीस अर्नड टू इनकम समरी अकाउंट। आपके पास रेवेन्यू डेबिट कर रहे हैं, या इसको आप कह सकते हैं फीस अर्नड डेबिट कर रहे हैं, और क्रेडिट में आप इनकम समरी। अब आपने इसकी रिप्लेसमेंट कर दी है, आपके पास डेबिट हो रहा है 16,840, क्रेडिट हो रहा है 16,840। आपने यहां पे अपना इनकम जो आपने रेवेन्यू अर्न किया था टोटल अदर देन एक्सपेंसेस, वो सारे का सारा अब आपने शिफ्ट कर दिया है इनकम समरी अकाउंट में। सेम विद द केस विद एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास हमेशा इंक्रीज इन एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट, आपने हमेशा एक्सपेंसेस को डेबिट किया, लेकिन जब आप उसको क्लोज कर रहे हैं तो उसका बिल्कुल आप उलट कर देंगे। जिस तरह आपने इनकम का उलट किया है इसी तरह आप उसको भी उलट कर देंगे। तो फिर क्या होगा, आपके पास फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, आपके वेजेस एक्सपेंसेस 250 के थे फॉर एग्जांपल, ये ज्यादा थे लेकिन हम इसको ले लेते हैं। आपके पास वेजेस हैड 250 अमाउंट, दैट वाज योर एक्सपेंस, and expense increase in expense is always debit, but now we are closing this account and we have to make it credit। आपके पास फिर क्या होगा, इनकम समरी डेबिट करेंगे 250 से, और क्रेडिट आप वेजेस एक्सपेंस 250 से। अब आपने इसको क्लोज कर दिया। अब हर एक्सपेंस को आपने सेपरेटली क्लोज करते जाना है until unless we reached up to a net amount। आपको वो नेट अमाउंट बाद में निकल आएगी, जो हमने ये यहां पर जो बैलेंस देखा था, नेट अमाउंट निकाली थी 7,205 की, उस पर आप लोगों ने पहुंचना है। अब आपको सैंपल के लिए मैंने 2 जनरल एंट्रीज बताई थी, इनका इफेक्ट देखा क्या है, कैसी ये ट्रांसफर हुई है। हमेशा क्लोजिंग एंट्रीज में आपने उलट चलना है, बिल्कुल आपके पास हमेशा वो उलट होगा। नॉर्मली जो बैलेंस चलते हैं, इसलिए मैंने पिछली आपको जो एक दोबारा से डेबिट और क्रेडिट के रूल्स बताए थे, नाउ दे आर टोटली अगेंस्ट दीज रूल्स। आप बिल्कुल उलट चल रहे हैं उसका, बिल्कुल ही आपने मिरर की दूसरी साइड यूज करनी शुरू कर दी है जब आप उसको क्लोज करें। उसकी वजह यह है कि वी हैव टू रीच अप टू इनकम समरी नेट बैलेंस। अब आप देखें कि पहली जो जनरल एंट्री आपने की थी दैट वाज योर इनकम समरी, रेवेन्यू या फीस अर्न्ड डेबिट एंड इनकम समरी क्रेडिट। इनकम समरी आपके पास क्या हो रही है, क्रेडिट, तो आपने क्रेडिट साइड पे लिखना होगा 16,840। ये किस अकाउंट के थ्रू हुआ है, ये आपके यहां पर फीस अर्न्ड के थ्रू हुआ है। आप इनकम समरी का अकाउंट देखेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि यस दिस अकाउंट केम इन द इनकम समरी अकाउंट थ्रू फीस अर्न्ड। जिस तरह हम लेजर्स बनाते रहे हैं, आपके पास एक तो ये चीज आ गई है।
दूसरा हम एक्सपेंस की एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस एक्सपेंस में इनकम समरी डेबिट हो रहा है, तो आपने यहां पे डेबिट लिख दिया 250। किस अकाउंट के थ्रू हुआ? आपके पास यहां पे वेजेस अकाउंट के थ्रू हुआ। अब यहां पर आई थिंक दिस इज नाउ इजी टू मेक our journal entries, and these journal entries are transferred into our income summary account. इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि आपने क्लोजिंग एंट्रीज क्यों की और उसकी रीजन क्या होती है। लेट्स स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रैच। इसके हम एग्जांपल्स कुछ और भी ले लेते हैं। यहां पर तो हमने फीस अर्न की एग्जांपल ली है, अब यहां पे कुछ और अकाउंट्स के हम एग्जांपल ले लेते हैं। एज आई टोल्ड यू दैट what is a rule of debit and credit with the normal accounts। इसी पेज पर हम, इसी स्लाइड्स पर हम यूज कर लेते हैं कि नॉर्मल अकाउंट्स आपके क्या होते हैं और आपके जब उसको ट्रांसफर करते हैं क्लोजिंग एंट्रीज में, जब आप उनको क्लोज कर रहे होते हैं तो फिर हमारे अकाउंट्स क्या बनते हैं। हम इसकी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं यहीं से। आपके पास एसेट्स और आपके पास एक्सपेंसेस। हमेशा एक डायरेक्शन में चलेंगे। अगर ये इंक्रीज होता है, इसको हम एरो की के थ्रू बता रहे हैं कि ये इंक्रीज हो रहा है, तो आपके पास ये डेबिट होगा, और इन केस ये डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ये, तो फिर आपके पास ये क्रेडिट हो जाएगा। अब ये आपके पास एक रूल ऑफ थंब है किसी भी अकाउंट के लिए। एंड वी हैड अदर 3 अकाउंट्स, लाइबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, या इसको आप कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं, एंड इनकम। इनकम कह लें, इसको रेवेन्यू कह लें, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। इनकी ट्रीटमेंट सेम होगी। अब ये अगर डिक्रीज करते हैं तो आपके पास ये डेबिट होगा, और अगर ये इंक्रीज करता है तो आपके पास ये क्रेडिट हो जाएगा। अब ये रूल ऑफ थंब है, ये आपके प्रिंसिपल्स हैं, ये हमने कई दफ़ा डिटेल में देख लिए हुए। लेकिन जब आप इनको क्लोज करते हैं, क्लोज कौन कौन से अकाउंट्स होंगे? आपके पास एक्सपेंस अकाउंट, बिकॉज दिस इज योर टेम्परेरी अकाउंट, और इसकी मैं दोबारा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये आप एक इनकम स्टेटमेंट से रेलेवेंट है, और ये आपके रिजल्ट्स का ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस के रिजल्ट्स होते हैं। तो ये फिर आप इनको नेक्स्ट ट्रांसफर नहीं करते, नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। और आपके पास इनकम, ये 2 अकाउंट्स आपके होते हैं। इनकी डिटेल जितनी मर्जी होती जाए, आप इनको नेक्स्ट कंटिन्यू करते रहते हैं। अब एक्सपेंसेस और इनकम, अब इनके नॉर्मल रूल्स भी हमें पता चल चुके हैं। व्हाट इज एक्चुअली अ नॉर्मल रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर इनकम एंड एक्सपेंस, एंड वी नो दैट दीज ऑलवेज गो इन द अपोजिट डायरेक्शंस। अब इन अकाउंट्स को आपने क्लोज करना है, और ये नॉर्मल अकाउंट से आपके जो अपोजिट अकाउंट हैं उनमें चलते हैं। अब पहली मैं बात करता हूं इनकम समरी के लिए। जब हम इनकम समरी अकाउंट बना रहे हैं कि हमने इनको क्लोज करना है, तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे। और इनकम समरी आपकी इस अकाउंट को, कोई भी अकाउंट होगा उसको रिप्लेस करेगी। जब इनको रिप्लेस कर रही है, इनको क्लोज किया जा रहा है, तो ये अपोजिट अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब यहां पर हम कहते हैं कि इंक्रीज इन एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस ऑलवेज क्रेडिट। तो ये डिक्रीज हो रहा है। अब इस वक्त डिक्रीज हो रहा है, तो फिर क्या करते हैं, हम इसको क्रेडिट कर देते हैं। अब यहां पर हम कह रहे हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस आपका क्रेडिट हुआ। आपने फॉर एग्जांपल हम यहां पर ले लेते हैं अब आपकी सप्लाईज एक्सपेंस। सप्लाईज एक्सपेंस आपने क्रेडिट किया और उसकी अमाउंट थी 2000 एंड मे बी 40। ये आप क्रेडिट करें तो फिर आप डेबिट में क्या लिखेंगे? अब कौन सा अकाउंट इनको रिप्लेस कर रहा है?
वो आपकी इनकम समरी। इनकम समरी अकाउंट ये आपका डेबिट हो रहा है 2040 के साथ। अब आप इसका कंपैरिजन करें कि जो आपके नॉर्मल रूल्स थे उनका ये बिल्कुल उलट हो गया। इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट होता है, अब क्योंकि इसको खत्म किया जा रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। आपने क्रेडिट करके इसको खत्म कर दिया और इसकी जगह अकाउंट कौन सा बना, इनकम समरी अकाउंट। इसके लिए आपने टी अकाउंट बनाना है। यहां पर हम इसका टी अकाउंट बना लेते हैं इनकम समरी का। इनकम इनकम समरी अकाउंट। अब इनकम समरी अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है। आपने डेबिट में अमाउंट लिख दी इसकी 2040 से, और किस अकाउंट के थ्रू हो रहा है, जस्ट टू गिव इंफॉर्मेशन टू द रीडर्स कि ये किस अकाउंट के थ्रू है, वो आपका यहां पर सप्लाईज एक्सपेंस, सप्लाईज एक्सपेंस के थ्रू है। अब आपने इसको क्लोज कर दिया, अकाउंट आपका सप्लाईज एक्सपेंस का अकाउंट क्लोज हो चुका है। दूसरे नंबर पे आपके पास इनकम थी। अब हम यहां पर ले लेते हैं रेंट रेवेन्यू। पिछले में हमने फीस अर्न की एग्जांपल ली थी, अब यहां पर हम रेंट की ले लेते हैं। तो आपके पास रेंट की एग्जांपल क्या होगी, आपने बिल्कुल उलट चलना है। आपके पास इनकम इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट होती थी, आप उसको खत्म कर रहे हैं तो उसका अपोजिट अकाउंट उसको रिप्लेस कर देंगे डेबिट के साथ। तो अब इनकम खत्म की जा रही है तो यहां पर आपके पास रेंट रेवेन्यू डेबिट किस अमाउंट से था 120 डेबिट करके, अब आपने जो रेवेन्यू था आपका जो नॉर्मल क्रेडिट होता है उसको डेबिट करके आपने क्लोज कर दिया और इसकी जगह अकाउंट आ जाएगा इनकम समरी 120 से। अब आपने रेंट रेवेन्यू को भी खत्म कर दिया, इसको अब इनकम समरी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहां पर इनकम समरी आपकी क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो आप क्रेडिट पे लिख दें 120 किस अकाउंट के थ्रू हो रही है, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है आपके पास, रेंट का अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है। तो इसी तरह पूरी की पूरी डिटेल लिखते जाएंगे, आप लोग डिटेल लिखते जाएंगे। उस डिटेल के बाद आप उसका फिर नेट बैलेंस निकालेंगे, जो आपका नेट बैलेंस निकलेगा वो आपका नेट इनकम होगी। नाउ यू आर कंफर्टेबल विद द इनकम समरी अकाउंट कि ऑल योर टेम्परेरी अकाउंट्स आर क्लोज्ड इनटू द इनकम समरी अकाउंट एंड दैट इनकम समरी अकाउंट फाइनली क्लोज इनटू योर कैपिटल अकाउंट। तो आपके पास स्टार्ट कहां से हुआ, आपके एक्सपेंसेस, आपके रेवेन्यूज, ये दोनों आपके इनकम समरी में गए और इनकम समरी आपकी फाइनली कैपिटल अकाउंट में क्लोज हो गई। आपके पास अब ये अमाउंट रह गई है, बाकी सारे के सारे अकाउंट्स आपके क्लोज हो चुके हैं। नाउ this is a complete picture of our closing process in which each and everything is informed in detail. Look at the first one. Revenues are transferred to the income summary as we did in our previous slide. आपने क्या किया है, रेवेन्यूज को ट्रांसफर किया है इनकम समरी में। ये पहली स्टेज है आपकी। आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, doing one thing first, one area of component first, then the second area of component second, the third, fourth, जो भी आपके सारे फेजेस बनते हैं, जितने भी आपके रेलेवेंट अकाउंट्स हैं वो सारे सारे इसी तरह आगे नेक्स्ट डिटेल में जाएंगे। तो फर्स्ट वन इज योर ऑल रेवेन्यूज आर ट्रांसफर्ड इनटू द इनकम समरी अकाउंट एज वी डिड इन आवर प्रीवियस स्लाइड। नंबर वन, that was a one phase. Then expenses are transferred into the income summary account. अब आप now you can see easily that this is your ledger या टी अकाउंट। यहां पर बताई ये बात जा रही है कि आपने एरो कीज के थ्रू के डेबिट, आपने डेबिट साइड पे क्या लिख रहे हैं और क्रेडिट साइड पे क्या लिख रहे हैं। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि रेवेन्यूज को कहां आप शिफ्ट करते हैं और एक्सपेंसेस को आप कहां शिफ्ट करते हैं। प्रीवियस स्लाइड पर अगर आप जाएं तो यहां पर देखें कि आपके पास ये रेवेन्यू
आपने क्रेडिट साइड पे लिखा। नेक्स्ट स्लाइड में आप यहां पर इसको लिख रहे हैं। देन आपने एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे लिखे, अब आप यहां पर भी एक्सपेंसेस को डेबिट साइड पर लिख रहे हैं। तो काम वो आप सारे का सारा सेम वही कर रहे हैं जो आपने पहले किया था, लेकिन आपने फेजेस क्या करने हैं। फर्स्ट फेज इज योर ट्रांसफर ऑफ रेवेन्यू इनटू योर इनकम समरी अकाउंट, and then expenses are transferred into the income summary account. Then third is net income or net loss is transferred to the retained earnings account. वो बेसिकली अकाउंट आपका बनता है स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी के थ्रू। अब आपके पास यहां पर नेट बैलेंस कितना आएगा, अगर आप याद करें हमारे पास 7,205 ये आपका नेट बैलेंस था। दैट अमाउंट वुड ट्रांसफर्ड इनटू द रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट। फिर उसमें से आप अमाउंट माइनस करेंगे जो आपने ड्राइंग्स की थी या डिविडेंड आपने दिया था। तो तीसरा फेज आपका जो बनता है, आपने नेट इनकम को ट्रांसफर किया किसमें, रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में, और उस रिटेन्ड अर्निंग में से आपने फिर डिविडेंड दिया। डिविडेंड मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ योर ड्राइंग्स आर पार्ट ऑफ योर इनकम दैट हैज बीन गिवन टू द ओनर्स। अब जब कॉर्पोरेशन लेवल पे बात होती है तो कोई भी अमाउंट किसी भी ओनर को दी जाती है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर डिविडेंड, और इनकम में से दी जाती है, वो हम इसको इनकम ही बोल रहे हैं। तो आपने डिविडेंड्स आर ट्रांसफर टू द रिटेन्ड अर्निंग्स, आपने ये माइनस किए हैं रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट्स में से। आपके पास जो टोटल अमाउंट थी 7,205 माइनस आपने ये डिविडेंड किया, अब आपके पास जो नेट इनकम बन रही है वो 3,205 की बन रही है। उसी हम इलस्ट्रेशन को एग्जांपल को लेके चल रहे हैं। नाउ यू हैव अ नेट बैलेंस ऑफ इनकम दैट इज 3,205 विच इज एक्चुअली अर्निंग रिटेन्ड। जो आपने टोटल अर्निंग्स की थी, डॉलर्स में की थी, पाउंड स्टर्लिंग में की थी या रुपीस में की थी, अब उसमें से आपने जो डिविडेंड दिया ऑनर्स को या आपने इनकम दी ऑनर्स को, इनकम का पार्ट दिया उनको, वो देने के बाद आपने अर्निंग रिटेन कर ली। हम ये अर्निंग रिटेन करते क्यों हैं, इसकी भी हमने काफ़ी तफसील में पीछे बताया था कि आपको कुछ कॉन्टीजेंसीज हो सकती हैं। आपका फ्यूचर प्लान ये होता है कि हमने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, तो आप कुछ और चीज़ परचेज करना चाहते हैं, तो वो हम इसी इनकम के थ्रू परचेज करेंगे। जो हमें ज़रूरत की अमाउंट थी वो हमने विड्रॉ कर ली, 4,000 ले ली हमने, अब ये हमारे पर्सनल ज़रूरियत को पूरी कर सकती है। तो देन द रिमेनिंग अमाउंट इज दैट अमाउंट विच इज़ गिवन टू द बिजनेस टू एक्सपैंड देयर बिजनेस ऑपरेशंस। हो सकता है वो इसमें और ऐड करें, अगले साल और ऐड करें और उससे एक और ब्रांच ओपन कर लें अपनी। तो अर्निंग रिटेन्ड इसलिए रखी जाती है कि आप या तो कॉन्टीजेंसीज को फुलफिल कर लें, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि जिसमें आपको अचानक ही कोई चीज़ परचेज करना पड़ जाती है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। आपने मशीनरी परचेज करनी है, आपने कोई और इक्विपमेंट परचेज करना है, कोई भी आपने कोई और एक और प्रोडक्ट बनानी है, आपने अचानक आपको और लेबर की ज़रूरत पड़ गई है, तो ये आपके पास एक बफर अमाउंट होनी चाहिए कि जिससे आप अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। क्योंकि आप अगर इमरजेंसी में लोन लेने के लिए जाएंगे तो लोन लेने का प्रोसेस ही बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो आई थिंक दिस कुड बी वेरी डिफिकल्ट। हो सकता है आपको मिल जाए लेकिन उसके लिए टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन इन केस योर केस इज रिजेक्टेड फॉर योर लोन, देन हाउ यू विल फुलफिल योर कॉन्टीजेंसी? देन दिस इज amount which can be utilized for your contingencies, your emergencies or your business growth. आपको हो सकता है कोई ऐसी सस्ती चीज़ मिल रही हो, फॉर एग्जांपल कोई लैंड है वही आप परचेज करना चाहते हैं, अमाउंट हाई हो, कोई इमरजेंसी में सेल करना चाहे। हमारे पास इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। कोई ऑफिस एमरजेंसी में सेल करना चाहता है, आपने रेंट पे लिया हुआ था, आपके पास अमाउंट पड़ी, आप फ़ौरन उसको जाके परचेज कर लेते हैं। So you should have at least a buffer amount so that you can fulfill your contingencies or emergency issues. आपके यहाँ पे 4 phases complete हो जाते हैं। Then the income summary account does not appear on the financial statements. आपने पीछे जितनी भी financial statements देखी हैं उसमें कहीं पे भी income summary account नहीं reflect होता। आपने कहीं नहीं लिखा income summary account,
आपने इनकम स्टेटमेंट भी बनाई, आपने बैलेंस शीट भी बनाई। नो अकाउंट इज इन्वॉल्व रिलेटेड टू द इनकम समरी अकाउंट, क्योंकि इस अकाउंट ने भी फाइनली क्लोज होना होता है। और किस अकाउंट में क्लोज होना होता है? फाइनली आपके ये जो अमाउंट है कैपिटल की, ये जो अमाउंट है आपकी इनकम की 3205, ये कहाँ गई होती है, ये कहाँ जा रही होती है? आपके कैपिटल अकाउंट में। तो इसने भी फाइनली शिफ्ट होना है कहाँ पर? आपकी कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया? आपने पहले स्टार्ट किया अपने रेवेन्यूज को इनकम समरी अकाउंट में लेके गए, अपने एक्सपेंसेस को इनकम समरी अकाउंट में लेके गए, फिर आपने नेट अमाउंट निकाली कि अब आपके पास ये नेट इनकम मौजूद है। उसके बाद आपने उसमें से जो डिविडेंड दिया था वो माइनस किया। फाइनली अब आपके पास रिटेन्ड अर्निंग है, और ये रिटेन्ड अर्निंग आपकी कहाँ अवेलेबल है? इनकम समरी अकाउंट में आपके पास। लेकिन इनकम समरी का अकाउंट कहीं पे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं रिफ्लेक्ट होता, उसने भी क्लोज होना होता है फाइनली आपके कैपिटल अकाउंट में। नाउ दिस इज अ ब्रीफ summary of all the accounts which is showing the net balances of your capital accounts, your temporary accounts. आपके पास for instance wages expense, आप अगर adjusted ट्रायल बैलेंस में देखें तो आपके पास ये अमाउंट थी जो आपकी इनकम स्टेटमेंट में गई थी 4525। उसके बाद आपके पास रेंट एक्सपेंस 1600 का था, 1600 का, ये भी आपका बैलेंस था। और आपके ये देखें सारे के सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे लिखे हुए हैं, बिकॉज दे हैव अ नॉर्मल बैलेंस ऑलवेज इन डेबिट साइड। एक्सपेंसेस हैव अ नॉर्मल बैलेंस ऑफ डेबिट साइड, रेवेन्यूज हैव अ नॉर्मल बैलेंस ऑफ क्रेडिट साइड। अब हमारे पास बाकी आप लाइबिलिटीज भी छोड़ दें, कैपिटल भी छोड़ दें, एसेट्स भी छोड़ दें, अब वो तीनों अकाउंट्स पीछे रह गए। क्लोजिंग एंट्रीज हो रही हैं सिर्फ आपके टेम्परेरी अकाउंट्स की। वो टेम्परेरी अकाउंट्स आपके क्या हैं? आपके एक्सपेंसेस हैं और आपके रेवेन्यूज हैं, और इनके आप नॉर्मल बैलेंसेस ले रहे हैं। नाउ वेजेस वी हैड इन आवर इनकम स्टेटमेंट 4525, रेंट एक्सपेंस 1000 and 1600 debit side, your depreciation expense 50, and with this amount we can easily understand that this amount has been taken from the income statement, क्योंकि आपके unadjusted trial balance में तो ये amount थी ही नहीं। So these are the balances after all adjustments, and we are taking it all in from the income statement. Utilities expense 985, supplies expense 2040, इसकी हमने पीछे एग्जाम्पल भी ली है। देन इंश्योरेंस एक्सपेंस 100 डेबिट साइड, एंड मिसलिनियस एक्सपेंस 455। अब हमने ये सारे के सारे अकाउंट्स अपनी लेफ्ट साइड पे रखें। आपके पास देन आपकी क्रेडिट साइड में फीस अर्नड, आपका टेम्परेरी अकाउंट है, आपने उसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया। फिर आपने रेवेन्यू एक्सपेंस रेंट रेवेन्यू क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आपके लेफ्ट साइड पे सारे एक्सपेंसेस पड़े हुए, उनके बैलेंसेस हैं, और आपके राइट साइड पे सारे के सारे आपके रेवेन्यूज पड़े हुए हैं। सेंटर में आपके पास यू हैव एन इनकम समरी अकाउंट। अब इसने कहाँ कहाँ जाना है? जो आपकी लेफ्ट साइड की चीज़ें हैं वो आप इसको इनकम समरी में लिखते जाएं, डिटेल सारे की। आपकी वेजेस हैं, आपकी रेंट एक्सपेंस है, आपके पास डेप्रिसिएशन है, यूटिलिटीज़ है, सप्लाईज हैं, इंश्योरेंस है आपके पास, और मिसलिनियस एक्सपेंस। सारे के सारे यू हैव टू राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड। इसकी जनरल एंट्री के थ्रू करें वो भी ठीक है, आप उसको डायरेक्ट लिखते जाएं। जो डेबिट था वो डेबिट साइड पे लिख दें, जो क्रेडिट था वो क्रेडिट साइड पे लिख दें, देन इट इज स्टिल ओके। बट I have made journal entries so that we could easily understand that what is actually a process of transferring our temporary accounts into the income summary accounts, जो आपके नॉर्मल डेबिट और क्रेडिट के रूल से हट के उसको उलट बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अब आपने क्या किया है? सारे के सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे लिखे और सारे के सारे रेवेन्यूज आपने क्रेडिट साइड पे लिखे।
और उनको आप ट्रांसफर कर रहे हैं, देन वी हैव अ बैलेंस. दिस बैलेंस वुड ट्रांसफर इनटू आवर रिटेन्ड अर्निंग्स, एंड देन out of retained earnings we will get the amount of dividend, that is 4000, और उसके बाद आपके पास net amount बचेगी. Now if you look at on the note, the balances shown are adjusted balances before closing. आपने भी closing entries पास नहीं किया, उससे पहले पहले के ये accounts थे. The following sequence demonstrates the closing process, कि आपने कैसे लेफ्ट साइड को आपने कैसे लेफ्ट साइड पर लिखा, डेबिट साइड को आपने कैसे डेबिट साइड पे लिखा. ये सारे का सारा आपका प्रोसेस है और यही आपकी क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर समिंग अप ऑल द रेवेन्यूज. वी हैड अ बैलेंस ऑफ, दिस इज योर नेट बैलेंस, दिस इज योर नेट बैलेंस. सो दैट बैलेंस इज एडेड इनटू द बैलेंस. सो अप टू दैट पॉइंट वी रीच्ड इनटू 16,960. It means we added 16,840 plus 120. The total amount is 16,960. ये आपके पास टोटल अमाउंट बचेगी, जिसको आपने उसकी क्रेडिट साइड पे शिफ्ट कर दिया. क्योंकि रेवेन्यूज आपके क्रेडिट होते हैं तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया. ये भी बात ठीक है, लेकिन जिस तरह हमने क्लोजिंग एंट्रीज की थी वो भी ठीक थी. पहला आपने फेज ये कंप्लीट कर दिया हुआ है कि आपने सारे के सारे रेवेन्यूज को ट्रांसफर कर दिया इनकम समरी में, और जो साइड उनकी हाई थी वही आपने वहां पर रखी है. देन इन द सेकंड स्टेप, डेबिट इनकम समरी फॉर द टोटल एक्सपेंसेस एज आई टोल्ड यू इन माय इलस्ट्रेशन, इन माय एग्जांपल, एंड क्रेडिट ईच एक्सपेंस अकाउंट फॉर इट्स बैलेंस. आपने वो सारे का सारा काम किया जो यहां पे आप शिफ्ट कर रहे हैं. अब आपके पास ये भी बैलेंस मौजूद है. दिस इज ऑल्सो अ बैलेंस, this is a balance, balance, supplies expense, balance, insurance expense, balance, and miscellaneous account balance. So you add up all these expenses balances and we would reach at a point of 9,775. आपने इन सब की जर्नल एंट्रीज करनी है. वो जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे आप, सिंपल यहां पर आपको बता रहा हूं मैं कि इनकम समरी अकाउंट आपने डेबिट किया और क्रेडिट में एक्सपेंस 1, 2, 3, 4 सारे के सारे आपने कर दिए. तो उन सब को आपने शिफ्ट कर दिया इनकम समरी अकाउंट में. क्योंकि यहां पर इनकम समरी आपकी डेबिट हो रही है, आपने डेबिट साइड पे लिख दिया. और यहां पर आप देखें आपके पास फीस अर्न्ड, आपके पास रेंट अर्न्ड, ये डेबिट हुआ. इनकम समरी आपकी क्रेडिट हुई, आपने क्रेडिट किया तो सेम यही क्रेडिट अमाउंट आप इनकम समरी में ले गए. यही हमने पहले इसके अकाउंट देखा भी था. अब टोटल आपके पास अमाउंट एक्सपेंसेस की 9,775 और आपके पास इनकम की अमाउंट है 16,960. अब आपके यहाँ पे इनकम समरी अकाउंट में आपने इसको पहुंचा दिया हुआ है. देन your net balance of your net profit is, this is called net profit, 7,205. यही अमाउंट हम ऑलरेडी पहले भी निकाल के लेके आए हैं, हमने इन सबको पहले से किया. हम इनकम स्टेटमेंट में हमने इसको कैलकुलेट भी किया है ऑलरेडी. यू हैव अ नेट बैलेंस ऑफ 7,205 और इसने ट्रांसफर कहाँ होना है आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स में. आपके पास 7,205 ये ट्रांसफर हुआ आपकी नेक्स्ट रिटेन्ड अर्निंग्स में. क्योंकि पिछले साल की आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स थी नहीं, आपने स्टार्ट किया था बिजनेस, सो दैट टोटल अमाउंट इज ट्रांसफर्ड इनटू द रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट. आपके पास बैलेंस किस चीज का आ रहा है, इनकम समरी का. ये आपका क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि अमाउंट कौन सी हाई है, क्रेडिट साइड की. सो जिस साइड की अमाउंट हाई होगी वही अकाउंट उसका कहलाता है. तो नाउ वी हैव अ हायर बैलेंस ऑफ क्रेडिट साइड, सो वी आर पुटिंग दिस डिफरेंस इनटू द क्रेडिट साइड. जो साइड हाई होगी नेक्स्ट ट्रांसफर उसी अकाउंट में होगी और उसी साइड पर होगी. इफ योर क्रेडिट साइड इज हायर in the next account, it would also be on the credit side. If your debit side is higher,
इन द नेक्स्ट अकाउंट इट वुड ऑलवेज बी एट अ डेबिट साइड, और बैलेंस भी उसका वही कहलाएगा। क्रेडिट साइड हाई है तो आपका क्रेडिट बैलेंस, डेबिट साइड हाई है तो उसका डेबिट बैलेंस। अब आपके पास यहाँ पर ये अमाउंट हाई थी, ये कौन से अकाउंट बनता है? क्रेडिट साइड है ना आपकी, तो ये आपकी क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी, और डेबिट साइड आपकी कम थी तो ऑटोमेटिकली आपने माइनस कर दिया उसको। अब आपके पास ये रिटेन्ड अर्निंग्स की अमाउंट आ रही है। स्टेप 3 में आपने क्या किया? डेबिट इनकम समरी फॉर दीज अकाउंट्स ऑफ बैलेंसेस, इन दिस केस द नेट अकाउंट एंड द बैलेंस इज योर क्रेडिटेड। आप इसकी क्या कर रहे हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स में लेके जा रहे हैं ना आप इसको, आप रिटेन्ड अर्निंग्स में लेके, क्योंकि आपने इसको ट्रांसफर कहां पे किया है? रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो इसकी आप जनरल एंट्री क्या कर रहे हैं? इसको यहीं पे मैं कर देता हूं। इसके लिए आपके पास इनकम समरी का क्रेडिट बैलेंस था, इसको ट्रांसफर कहां कर रहे हैं आप? रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो आपके पास इनकम समरी डेबिट हुई और क्रेडिट में आप रिटेन्ड अर्निंग्स कर रहे हैं। यहां पर आप मेंशन भी करना चाहें तो ये अकाउंट कहां से है? इनकम समरी से आया, दैट इज 7205 अमाउंट आपके पास अवेलेबल है, ये आपने इसकी जनरल एंट्री की है। सो यू हैव कंप्लीटेड योर स्टेप 3। इफ यू गो बैक we could see step 1 was your transferring your revenues into the income summary account. Step 2, that was transferring your expenses into the income summary account. Step 3, we are doing now income summary account into the retained earnings account. ये आपने step 3 भी कर दिया। Then step 4, you took it your dividend into your retained earnings account. आप इस अमाउंट को, ये जो आपका बैलेंस था, इस बैलेंस को आपने शिफ्ट किया है रिटेन्ड अर्निंग्स में। रिटेन्ड अर्निंग्स मींस, या आप इसको डिविडेंड भी कहें, आप इसको ड्राइंग्स भी कहें, जो भी आपने काम किया है, तो आप इस डिविडेंड को आप लेके जा रहे हैं कहां पे? रिटेन्ड अर्निंग्स में। आपके पास फाइनल ये अकाउंट बच रहा है, इस डिविडेंड ने भी क्लोज होना है, ये भी आपका क्लोज हो रहा है अकाउंट। तो आपके पास अब एक रिटेन्ड अर्निंग का नेट बैलेंस बच जाएगा। 4th स्टेप इज योर डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स, क्योंकि आप उसको भी खत्म कर रहे हैं। नॉर्मली आप क्या करते थे? आपके पास वो अकाउंट कम हो रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स में से अमाउंट आपकी जा रही है, इनकम में से आपकी अमाउंट जा रही है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। फॉर बैलेंसेस एंड डिविडेंड एंड क्रेडिट डिविडेंड फॉर द सेम अकाउंट, आप उसको इसी तरह उसमें क्रेडिट कर रहे हैं। आई होप कि नाउ दिस इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर टू थर्ड वन, क्योंकि हम इनको क्लोज कर रहे हैं। हमारे पास नेट बैलेंस वो अमाउंट बचेगी जिसको हमने अपने कैपिटल अकाउंट में ऐड करना है जाके। अब आप खुद देखें कि दैट वाज योर नेट प्रॉफिट, दैट वाज योर डिविडेंड गिवन टू द ओनर्स, ओनर्स ने विड्रॉ कर लिया, ओनर्स को ये प्रॉफिट दे दिया गया प्रॉफिट में से। अब आपके पास जो बैलेंस बचेगा दैट इज 3205, ये अमाउंट आपके पास बचेगी। दिस इज योर बैलेंस एंड दैट बैलेंस वुड बी फाइनली गो इनटू द कैपिटल अकाउंट। अब आपने, मैं इसको दोबारा से बता देता हूं आपके लिए कि आपको समझ आ जाए कि प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुआ। फर्स्ट, all your revenues transferred into your income summary account, then all of your expenses transferred into your income summary account, then we reached up to the point of your net profit. This net profit was transferred into your retained earning, and then you took it dividend amount and brought into the retained earnings account. वहां पर आपने इसको माइनस किया, आपके पास एक नेट अमाउंट बच जाएगी, दैट इज 3205। इस अकाउंट ने आपके ट्रांसफर होना है नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट में। यहां पर आपके पास एक ब्रीफ समरी है, इसके कलर्स आपको बता रहे हैं कि आपने क्या यहां पर काम किया, कैसे कैसे आपने काम किया और कैसे आपने ट्रांसफर किया। नाउ क्लोज रेवेन्यूज आप देख सकते हैं उसका अकाउंट, क्लोज एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं उसका कलर आपके पास यहां पर नेवी ब्लू में बताया जा रहा है कि जिन अकाउंट्स को आप क्लोज कर रहे हैं। फिर इनकम समरी आपको कलर बता रही है कि आपने उसको कैसे किया। आपके पास ये सारे के सारे, ये नेवी ब्लू, ये आपके ट्रांसफर हो रहे हैं यहां पे
ये दोनों अकाउंट्स आपके फीस रेवेन्यू के, ये फीस एंड और रेंट रेवेन्यू, ये आपके ट्रांसफर हो रहे हैं इनकम समरी में। फिर ये इनकम समरी आपकी ट्रांसफर हो रही है रिटेन्ड अर्निंग्स में। उसके बाद आपका ये डिविडेंड ये ट्रांसफर हो रहा है आपका रिटेन्ड अर्निंग में। आपके पास फाइनल ये अकाउंट बच रहा है रिटेन्ड अर्निंग्स का। नाउ दिस रिटेन्ड अर्निंग हैज अ बैलेंस ऑफ नाउ 3205 आपके पास रिटेन्ड अर्निंग में बचेगा। बाकी अब देखें कि आपने यू हैव ऑल डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल साइड्स, दिस इज योर डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड, यू मेड इट बैलेंस बिकॉज दिस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड। सारे रेंट एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेप्रिसिएशन सब अकाउंट्स को आपने इक्वल कर दिया। अगेन ऑन द रेवेन्यू साइड योर क्रेडिट साइड make it equal to the debit side, then again credit side debit side equal, all your accounts are then transferred because they are now equal balances. Your dividend account both debit and credit equal, but one account is not even balanced, that is your retained earning. Your credit side is 7205 and your debit side is 4000. The balance is your 3205, which is your now retained earnings balance. After closing entries are posted, all of the temporary accounts have a zero balance because your debit and credit made equal. आपने दोनों को इक्वल कर दिया। अब आपके पास कोई भी बैलेंस मौजूद नहीं है, आपके पास सारे एक्सपेंस अकाउंट्स क्लोज्ड। आपके सारे रेवेन्यूज अकाउंट्स क्लोज्ड। आपके पास डिविडेंड क्लोज्ड। नाउ द ओनली अकाउंट दैट इज लेफ्ट विच इज retained earnings. This is the only account which is left and it has a balance because your expenses debit and credit was made equal. Your revenues debit and credit was made equal. Your dividends or your drawings made it equal, debit and credit. The only balance which is transferred, the difference between all is transferred into your retained earnings account. The net balance is your 3205 which is the amount left. इसको आपने बैलेंस नहीं करना, बाकी सब अकाउंट्स को बैलेंस करके आपने क्लोज कर दिया है। योर 31 December 2011 हैज बीन क्लोज्ड। नाउ योर नेक्स्ट ओनली द अकाउंट विच इज ट्रांसफर्ड विच इज रिटेन्ड अर्निंग। ओनली आपका ये एक अकाउंट रह गया है जिसको आपने ट्रांसफर करना है, बाकी नन ऑफ द अकाउंट वुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द नेक्स्ट ईयर। मे बी यू कैन से दैट दिस इज January 1st 2011। कोई अकाउंट आपका ट्रांसफर नहीं हो रहा, सिंपल एक यही अकाउंट है जो आपका ट्रांसफर हो रहा है। इसके अलावा आपने किसी अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करना, सिंपल ये एक रिटेन्ड अर्निंग है जो आपका कैपिटल अकाउंट में जा रहा है। इसके अलावा आपने कोई काम नहीं करना। यू हैव क्लोज्ड ऑल ऑफ योर अकाउंट्स, आपने सारे काम मुकम्मल कर दिए। अब इस अमाउंट को देखें तो पिछली जितने भी हमने एग्जाम्पल्स ली हैं तो उसमें जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट आप लिखते हैं। आपने 3205 की अमाउंट जितनी भी बैलेंस शीट्स बनाई है आपने एक अकाउंटिंग साइकिल के थ्रू की, आपने बेशक इसको वर्कशीट के थ्रू किया, सिर्फ ये अकाउंट आपकी ट्रांसफर हुई है, इसके अलावा आपके सारे बैलेंस शीट के अंदर कोई अकाउंट नहीं था। सो यू हैव कंप्लीटेड अप टू दैट पॉइंट। दिस इज पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ योर अकाउंटिंग साइकिल। अब आप इसके अकाउंट्स पे जरा एक दफा नजर दौड़ाएं। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, सप्लाईज, प्रीपेड इंश्योरेंस, लैंड, ऑफिस इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये आपका अकाउंट आगे भी चलेगा, हर साल इसमें ऐड होता जाएगा। अकाउंट्स पेएबल, अनअर्न्ड रेंट, कैपिटल स्टॉक या कैपिटल ऑनर्स इक्विटी कह लें, वट एवर द वर्ड यू कैन यूज इट, एंड रिटेन्ड अर्निंग्स।
These are only the accounts which are left. All of your previous accounts which includes your expenses, your revenues, सब के सब खत्म हो चुके हैं. अब ये वो अकाउंट है जो आपका नॉर्मली बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स होते हैं. एंड दीज आर ऑल योर परमानेंट अकाउंट्स. नाउ लुक एट देयर बैलेंसेस एज वेल. कैश 2065, वो अमाउंट जो आपके पास बैलेंस शीट में पड़ी थी. अकाउंट रिसीवेबल 2720, that was the amount which we brought it in our balance sheet. Supplies after all expenses, you have left 760. Then prepaid insurance 2300, that is amount left because we deducted 100. Now we have only this account with the amount of 2300. Office equipment, land 20,000, office equipment 1800, and its contra account is your accumulated depreciation. Then your accounts payable, wages payable, this is a liability, and we had closed wages expenses. Now this is liability. This will not, because you cannot say to your creditors that we are not supposed to pay any amount to you because we have closed our accounts. This is your liability, your permanent account that would be transferred in the next year, next accounting year जो आपका 1 जनवरी से start होना. Then 240 unearned rent, this is your liability. Your capital stock, and finally this is the amount retained earnings which we brought from our retained earning account from the closing entries. आपने यहाँ पर सारे का सारा काम कंप्लीट कर दिया. जस्ट ओवरव्यूइंग दिस क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस या पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, आपके पास सारे के सारे परमानेंट अकाउंट्स मौजूद हैं जिनके बैलेंस हमेशा कैरी फॉरवर्ड होते हैं. कैश आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, अब इतनी मौजूद है, अब नेक्स्ट ईयर में हमारे पास ये अवेलेबल कैश थी. रिसीवेबल्स, आप लोगों के अकाउंट्स को ख़त्म नहीं ना कर सकते. यू हैव टू कलेक्ट द मनी बिकॉज यू परफॉर्म्ड योर सर्विसेज. आपने लोगों को सर्विसेज दी है, उसके अगेंस्ट आप ये सारे का सारा काम कर रहे हैं. देन प्रीपेड इंश्योरेंस, सारे इंश्योरेंस आपने एडवांस में दी है तो आप इसको कैसे क्लोज कर सकते हैं? अभी तो आपकी ये मौजूद है, ये आपके डेफरल्स हैं. देन लैंड आपका परमानेंट एसेट है, इसने कंटिन्यू है, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते. Then office equipment, you are using it for a longer period of time, आप इसको क्लोज नहीं कर सकते. Then accumulated depreciation, इसका कॉन्ट्रा अकाउंट है जिसकी हमने काफ़ी दफ़ा डिटेल में बात की है. Then accounts payable, this is your permanent account because you cannot say anybody that we are not paying any amount to you. They have to take money from you because they have given you your maybe your services, they have given you the supplies, so that is why you cannot say that your account is closed. They would always ask from you unless you paid the amount. Then wages payable, people have performed your services, your labor has performed services, then you have to give the money to them. Then unearned rent, somebody has given you the advance rent, this is your liability until unless वो वहाँ पर उस टाइम तक रह नहीं लेता. आप उसको कह नहीं सकते कि जी साल ख़त्म हो गया आपका रेंट भी ख़त्म, ऐसे नहीं हो सकता. Then capital stock, आपने जो इन्वेस्ट किया, and finally retained earnings, that is an amount which is left after deducting all of your expenses, your dividend, and this amount is added finally in the capital account. So this is a completion of chapter number 4. We have done in this lecture review of 7 basic steps of the accounting cycle. We started from journal entry up to the post closing trial balance, जिसका हमने लास्ट स्लाइड देखी. हमने जर्नल एंट्री से स्टार्ट किया, आपने उसको लेजर्स में लेके गए, लेजर से आप ट्रायल बैलेंस में आए, ट्रायल बैलेंस से आपने एडजस्टमेंट्स की, फिर आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पे आए, फाइनली आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, और 7th स्टेप आपका पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस. ये आपने सारा काम किया है. इसमें आपने फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट्स भी देखे. मैचिंग कॉन्सेप्ट्स में आपने ये भी देखा था, हमने पढ़ा उसको पिछले लेक्चर में था, पिछले हमने चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन हमने उसको लिंक किया कि आपने जो रेवेन्यू कमाया है, जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया है, उससे रेलेवेंट आपने एक्सपेंसेस शामिल करने, किसी और के एक्सपेंसेस आपने शामिल नहीं करने, या आपने रेवेन्यू वो लेना है जिसके आपने एक्सपेंसेस किए हैं, कोई और रेवेन्यू आपने नहीं लेना.
तो आपने वो सारे के सारे अब अकाउंट्स क्लोज कर दिए हुए अपने क्लोजिंग एंट्रीज में. देन वी टॉक्ड अबाउट द एक्रूअल्स, accrual basis of accounting and cash basis of accounting. Then we talked about deferrals, deferred expenses, prepaid expenses, you paid advance expenses. Then deferred revenues, these are unearned revenues, ये आपकी liability है और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास unearned rent की थी. Then accrued expenses, these are the expenses which has already been incurred but you did not pay any amount, so that is your liability. आपकी ये liability बनती है, जैसे आपने wages payable आपकी liability है. Then accrued revenues, आपके accrued assets हैं, आपने मतलब सर्विसेज परफॉर्म कर दी हैं लेकिन आपने उसके अगेंस्ट अभी तक कोई फी आपने कैश रिसीव नहीं की, आपका ये अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट हमने बनाया था. Then we talked about fixed assets and we came up into the proper word that is called property, plant and equipment. उसमें हम सारी कैटेगरीज नेक्स्ट लेकर आए. Then effect of omitting adjustments, अगर हम एडजस्टमेंट्स को छोड़ दें तो हमारा उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा. Then we talked about summary of basic adjustments, वो क्या थी. Then preparation of income statement columns, preparation of balance sheet columns. Then finally we made closing entries. आपने closing entries complete की हैं अपनी और उसके बाद आखिर में आप पहुंचे after closing trial balance. This closing trial balance is just like the items of balance sheet. इसमें आपके कोई भी expenses शामिल नहीं है, कोई भी आपके revenues शामिल नहीं है. These items include your permanent accounts which continues every year, their balances are carry forward in the next year, next time period, whereas in your temporary accounts you closed all of your accounts and in the next time period you start your expenses and revenues right from the scratch. बिल्कुल आप zero से start करते हैं. So that is your end of chapter number 4. We have up to now talked about complete accounting cycle and we did our complete accounting cycle from the worksheet as well. फिर उसके बाद आपने क्लोजिंग एंट्रीज करके उसको कंप्लीट कर दिया हुआ है. फाइनली आपके पास एक अमाउंट रिटेन्ड अर्निंग की बचती थी जिसको आपने अपने कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट किया है. सो दिस इज एंड ऑफ चैप्टर नंबर 4. आई होप दैट यू हैव नाउ अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ accounting cycle. Again, I would suggest for you, being an instructor, that you go through these slides time and again, assume some questions. Maybe I will tell you later on that these are the questions. You have to practice them continuously so that we should be familiar about this accounting process. आप उसको बार बार पढ़ें, इन लेक्चर्स को बार बार पढ़ें, उसके बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये आपका कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल और हमें अकाउंटिंग की समझ आ जाएगी. क्योंकि इसके बाद हमारे एडवांस्ड लेवल की अकाउंटिंग स्टार्ट होगी. जब तक ये हमें प्रोसेस नहीं समझ आएगा तो उस वक्त तक हमें ये सारे की सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी. सो आई होप दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस lecture number final 12. Thank you very much, and inshallah we will meet in the lecture number 13 with the new topics. Thank you very much and Allah Hafiz.